So now today we will study what is ambident nucleophile. न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, या तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, जैसे NH2, H2O, ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स. एम्बिडेंट क्या होता है? कई ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं. जैसे बच्चों ये Cn है, इस Cn में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो C से भी डोनेट हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर N से भी डोनेट कर सकता है. ये अगर बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर विल कम एट नाइट्रोजन. सो इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड. एक टाइम पर एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बट कैन हैव बोथ द अटैकिंग साइड्स. ऐसे ही बच्चों जैसे SCN एंड NCS, NO2 एंड ONO, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहां पर SCN और यहां पर N से. NO2 में N से डोनेट कर रहा है और अगर बना रहा है ONO, it is connecting with O, donating electron pair with O. So these are the ambident nucleophiles which can donate electron from two sides but one at a time. Ambident nucleophile पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है. अगर हम एल्काइल हैलाइड को KCN से ट्रीट करते हैं तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो साइनाइड होता है. बट अगर हम KCN की जगह AgCN लें, if we use AgCN, then it forms isocyanide as the main product. Question arises why? ये बच्चों जो KCN है, it furnishes cyanide ion. This is ionic compound. And now this CN has the equal probability to donate electron either from carbon or nitrogen. But carbon to carbon bond जो बनता है that is stronger than the bond between nitrogen and carbon. So this C forms bond with the C of alkyl group and RCN is the major product. But in the case of AgCN, this silver cyanide is a covalent compound. So this silver remains connected with Cn through covalent bond. यहां पर बच्चों Cn माइनस फ्री आयन नहीं है, यहां पर सिर्फ अवेलेबल नाइट्रोजन की पोजीशन है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इस R पर अटैक कर सकती है. So this is the only possibility. Moreover, this Ag is so big, it don't allow the attack from this carbon atom. So the only possible attack is with the nitrogen. Hence, the product form will be RNC. ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं. जब एल्काइल हैलाइड में KCN डालते हैं, KCN is an ionic compound, so C and N both are free to attack, but C bond is stronger with R क्योंकि C और C ज्यादा strong bond बनाते हैं. So RCN is the major product. In the case of AgCN, which is a covalent compound, so what happens? This C remains connected with Ag through covalent bond. Moreover, its position is sterically hindered with this bigger Ag. The only position is N from where it can donate electron. It can act as a nucleophile. So in this way it forms isocyanide as the main product. Next बच्चों, जो हम रिएक्शन हमने स्टडी की है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, we will study the mechanism of substitution reaction. Substitution reaction is
basically of two type, SN1 and SN2. SN1 means substitution. N stand for nucleophilic and 1 means unimolecular. जबकि SN2 का मतलब होता है substitution, nucleophilic and 2 stand for bimolecular. Substitution nucleophilic unimolecular, substitution nucleophilic bimolecular. SN1 का मतलब है कि जो rate of reaction है that depends on the concentration of only one component, that is the substrate. So it is unimolecular. Whereas in SN2 the rate of reaction depends on substrate as well as the nucleophile, means both the molecule. So this type of substitution is called as bimolecular. So now let us first discuss SN1 or substitution nucleophilic unimolecular. जैसे बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कार्बन connected with 3 other carbon atom. This is 3 degree carbon atom and let this is the weaker nucleophile. ये बच्चों टेट्राहेड्रल है. अब हमने इसमें क्या लिया, इसमें हमने माना कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, जैसे KOH डाला, KOH ने OH न्यूक्लियोफाइल दिया. So what happens, ये टेट्राहेड्रल है, all the angles are same, they are nearly 109 degree and 28 minute. So in the first step this Cl pulls the bonded pair from this carbon and Cl minus eliminates. जैसे ये बॉन्ड पेयर Cl ले लेगा, C के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. बच्चों अभी ये जो कार्बन है ये टेट्राहेड्रल है और जैसे ही ये एक क्लोरीन एटम एज ए क्लोराइड आयन निकल जाएगा, कार्बन एटम के पास सिर्फ 3 बॉन्ड रह जाएंगे और 3 बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता है, दैट बिकम्स प्लेनार. So what will happen? It will form a carbocation which is planar in shape. So this is the intermediate carbocation, a flat carbocation, a planar carbocation. Any species can undergo SN1 or not, that depends on the stability of this carbocation. Now, the nucleophile OH minus can attack either from the left or from the right side. दोनों ही पॉसिबिलिटीज इसके पास हैं. ये लेफ्ट से भी अटैक कर सकता है और राइट से भी. देखो Cl जैसे यहां राइट से निकला है, अगर OH माइनस ने राइट से ही अटैक किया तो उस केस में क्या होगा बच्चों, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल वही सेम कॉन्फ़िगरेशन. और ये बच्चों CH3 एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH. और सेकंड पॉसिबिलिटी, जैसे अगर मैं कहूं ये पहला केस था, OH ने राइट से अटैक किया. सेकंड पॉसिबिलिटी OH कहां से अटैक करे, लेफ्ट से. तो उस केस में बच्चों क्या होगा, इसको अलग कलर से ले लेते हैं. अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा रिवर्स होगा क्योंकि अब OH माइनस इस साइड से आएगा. नाउ OH माइनस विल अटैक फ्रॉम दिस साइड. This is the strong nucleophile OH and CH3
एंड दिस वन अगेन CH3। तो ये हमें दो प्रोडक्ट मिले हैं बच्चों। एक तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का है, Cl ने वहीं से अटैक किया जहां से हमारा OH ने वहीं से अटैक किया जहां से Cl निकला था। दिस इज बेसिकली द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, whereas in this case OH अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। This is basically the inversion of configuration. So in this way we get the product in both the amount will be in equal proportion. 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। Now बच्चों, the next question arises कि how will find whether the given compound will undergo SN1 or not. तो जो SN1 है, जैसे हमने कहा कि दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटाइन। कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा। जितने इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड होंगे, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एंड दिस वे this carbon positive charge will partially neutralize, और यहां कार्बन के पॉजिटिव चार्ज कम होने से ये स्टेबल हो जाएगा। So 3 degree carbon is most stable, then 2 degree and the most reactive will be 1 degree. Therefore the reactivity follows this order. एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं बच्चों। SN1 में क्या हुआ, कार्बन एटम जिससे कि वीकर न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ये निकल जाता है और कार्बोकैटाइन बन जाता है, ट्रायंगुलर प्लेनार। पहले अगर ये टेट्राहेड्रल था, इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3, अब होगा ट्रायंगुलर प्लेनार, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। नाउ द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल either can attack from the same side from where the weaker nucleophile get replaced, that results in retention, or it can attack from the opposite side, that results in inversion. बच्चों, जो बॉन्ड है पहले, अगर रिटेंशन में हमारे बॉन्ड सेम पोजीशन पे हैं, ये टेट्राहेड्रल कार्बन के बॉन्ड जैसे ही एक प्लेनार में आए दोबारा बेंड सेम डायरेक्शन में कर जाएंगे। मगर इन्वर्जन में क्या हो रहा है, दे विल बेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो बच्चों, एक एग्जांपल लेके, फिगर लेके बताता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नजर आ रहा हो, सो दिस इज द टेट्राहेड्रल कार्बन। ये माना आपका 4 ग्रुप है, इसमें ये वीकर है, तो ये हमारा क्या होगा, जैसे ही ये निकलेगा ये एक प्लेन में आ जाएंगे। नाउ दिस स्ट्रॉन्ग कैन कनेक्ट फ्रॉम द सेम साइड, तो ये फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। And this also can form bond from the opposite side, तो उस केस में ये थोड़ा सा फ्लिप कर जाएंगे बॉन्ड, जैसे कि बरसात में छाता फ्लिप करता है अपसाइड डाउन। दिस इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, ये था SN1 सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे SN2 सब्स्टिट्यूशन, और ये देखेंगे कि SN2 सब्स्टिट्यूशन होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरह के सब्सटेंस SN2 इजीली जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।